حضرات، ہمارا اور آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے اسے مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کا معنی امن، اسلام کا معنی سلامتی، اسلام کا معنی محبت، اسلام کا معنی پیار۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، جہاں جب تک اسلام کا بول بالا نہیں تھا زمانے میں امن و سکون نہیں تھا۔ لوگ شراب خانے میں زندگی گزارتے تھے، جوا خانے میں زندگی گزارتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کا سماج میں کوئی وقار اور مقام نہیں تھا۔ علم کسے کہتے ہیں اس کا کوئی بول بالا نہیں تھا۔ ایسے پرفتن دور میں جب انسان انسانیت کو چھوڑ کر حیوانوں بھری زندگی گزار رہا تھا، ایسے عالم میں قرآن نے اعلان کیا یعلم الکتاب والحکمہ، میں نے آپ کو اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھلائیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے آنے کا مقصد؟ تو قرآن کہتا ہے مقصد مجھ سے پوچھو۔ یزکیکم، میں نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ نبی علم کے ذریعہ، کتاب کے ذریعہ، تبلیغ کے ذریعہ، اپنی سیرت کے ذریعہ، اپنی تعلیمات کے ذریعہ، اپنے کردار کے ذریعہ، اپنے اخلاق کے ذریعہ، اپنے گفتار کے ذریعہ بگڑے ہوئے ماحول کو اچھا بنا دے، بگڑے ہوئے سماج کو اچھا بنا دے، سماج میں پریورتن آئے، ماحول میں چینجنگ ہو، زمانے میں انقلاب آئے، انسانوں کو نئی زندگی ملے۔ اسی نئی زندگی کو دینے کے لیے آمنہ کے لال تشریف لائے۔ آمنہ کے لال نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آمنہ کے لال کی 63 سالہ زندگی، 40 سال مصطفیٰ جان رحمت اپنے کردار سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور 23 سال مصطفیٰ جان رحمت زبان سے بھی تبلیغ کرتے رہے اور کردار سے بھی تبلیغ کرتے رہے۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آج ہمارے پاس تقریریں ہیں مگر تبلیغ نہیں ہے، آج ہمارے پاس نعرے ہیں مگر زندگی میں خود ہماری اصلاح نہیں ہے۔ ایسے پرفتن دور میں ہم جی رہے ہیں۔ اگر پورے مجمع میں ادھر عورتیں بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، اگر صرف ایک کسی مرد سے پوچھا جائے ایک ایسا مسلمان لے آئیے جسے دیکھنے کے بعد پتا چلے کہ واقعی میں یہ جو کر رہا ہے یہی نبی کی سنت ہے، یہی نبی کا کردار ہے، یہی اسلام کا حکم ہے، یہی اسلامی اخلاق ہے، یہی اسلامی قدر و منزلت ہے، آپ کہیں گے مولانا نہیں، ایسا تو کوئی ویکتی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے جسے دیکھ کر اسلام کو سمجھا جائے، جسے دیکھ کر اسلام کو جانا جائے۔ اتنی عورتیں اور مہلائیں یہاں بیٹھی ہیں، پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں، اور اس میں اکثر ایسی بیٹیاں ہوں گی جنہوں نے خاتون جنت کے نام کا فاتحہ کرایا ہوگا۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے ایک ایسی شہزادی اپنے گھر سے لائیے جس کے کردار کو دیکھ کر پتا چلے کہ یہ خاتون جنت کی سیرت والی بیٹی ہے۔ آپ کو کہنا پڑے گا مولانا، ہمارے سماج میں نام تو کنیز فاطمہ تو نام کی عورتیں بہت مل جائیں گی مگر سیرت فاطمہ زندگی میں ملے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حسین نظر آتے ہیں مگر کردار حسین نظر نہیں آتا ہے، غوث نظر آتے ہیں کردار غوث نظر نہیں آتا ہے، احمد رضا نظر آتے ہیں کردار احمد رضا نظر نہیں آتا ہے، اعلیٰ حضرت صاحب اختر رضا نظر آتے ہیں کردار اختر رضا نظر نہیں آتا ہے، عائشہ نظر آتی ہے سیرت عائشہ نظر نہیں آتی ہے، صاحب فاطمہ نظر آتی ہے مگر سیرت فاطمہ نظر نہیں آتی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کب تک اندھیرے میں ہم زندگی گزارتے رہیں گے؟ آج ہماری اسی بدعملی کا نتیجہ ہے، آج سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ماس میڈیا ہو، موویز اور فلموں میں ہمارے خلاف زہر اگلے جا رہے ہیں۔ پورے بھارت کے ہر گھر میں دکھایا جا رہا ہے یہ ٹوپی پہننے والا بم چلانے والا ہے، یہ ٹوپی پہن کر چلنے والا جیب میں ریوالور اور بندوق رکھنے والا ہے، یہ نقاب پہننے والی عورت کسی کی جاسوسی کرنے والی ہے۔ جب موویز اور فلموں کے ذریعہ ہمارے کردار کو سماج میں بگاڑ کر
किरदार पेश किया जा रहा है। मैं सिवान से पटना आ रहा था, देखा साहब फिल्म चला रहा है बस में, एक मौलवी साहब फिल्म में पढ़ा रहे हैं, बच्चों बताओ अगर दीन पे आंच आई तो क्या करोगे। फिल्म में छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं जिहाद करेंगे जिहाद। बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या समाज को पैगाम देना चाहते हैं। 5 मिनट बाद दिखाया जा रहा है पुलिस एक नौजवान मुस्लिम लड़के का पीछा कर रही है, साहब जींस पहना है, टी शर्ट पहना है, सर पे टोपी है और भागा जा रहा है। साहब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके जेब से और उसके पटुए से बम निकलता है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा साहब जमाने को दिखाया जा रहा है, ये मुसलमान नहीं बम चलाने वाले हैं, ये मुसलमान नहीं बारूद चलाने वाले हैं, ये मुसलमान नहीं पत्थर चलाने वाले हैं। लेकिन आओ मैं आपसे कहना चाहूंगा वो भारत की मीडिया कान खोलकर सुन ले, मुसलमानों अब वक्त बैठने का नहीं है, अब वक्त नबी के किरदार को जिंदगी में सजाकर समाज में दिखलाने का है, लोगों तक पहुंचाने का है। साहब भूल गए कश्मीर में किसी के हाथ में पत्थर हो तुमने कैसे समझ लिया यही मुसलमान का किरदार है। ताइफ का मैदान है, आमिना के लाल है, इस्लाम की तबलीग करने के लिए पहुंचे हैं। अल्लाह अल्लाह जब कुफारा ने ताइफ के सामने आका ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ऐ लोगों कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। आका सच्ची बात करने गए थे, ईमान की दौलत से सरफराज करने गए थे, मगर ताइफ के लोगों ने आका के जिस्म पे पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। याद रखना पत्थर खा रहे हैं हमारे और तुम्हारे नबी, मगर जबान पे उफ नहीं है। कहते हैं लोगों पत्थर मारो मगर मेरी बात मान लो, तुम पत्थर चला रहे हो चलाओ मगर मेरी बात मान लो। इतने पत्थर आका के जिस्म पर बरसाए गए कि साहब जिस्म मुबारक खून से लहूलुहान हो गया, नालैने मुबारक खून से भर गया। अल्लाह अल्लाह सहाबा के आंखों में आंसू आ गए, जमीन हिल गई, आसमान दहल गया, फरिश्ते आ गए। या रसूल अल्लाह इजाजत हो मैं पत्थरों का फरिश्ता हूँ, इजाजत हो तो इनके जिस्मों पे पत्थर को बरसा दिया जाए। मैं पहाड़ का फरिश्ता हूँ, इजाजत हो तो इनके जिस्मों पे पहाड़ को पलट दिया जाए, इजाजत हो तो इनकी बस्ती को उलट दिया जाए। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप कुफाराने ताइफ के लिए बद्दुआ कर दीजिए, लेकिन याद रखना आमिना के लाल हाथ उठाते हैं, कहते हैं ए मेरे सहाबा मैं दुनिया में किसी के को बद्दुआ करने के लिए नहीं आया, मैं तो रहमत लिल आलमीन बनकर आया हूँ, मैं तो लोगों के लिए दुआएं करने के लिए आया हूँ। आका हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं मौला जिन्होंने मुझे पत्थर मारे हैं तो उनकी नस्लों को ईमान की दौलत दे दे, मौला तू उन्हें ईमान की दौलत से माला माल कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्रील मैं किसी के लिए बद्दुआ करने या किसी पे पत्थर पलटवाने के लिए नहीं आया। ऐ मेरे मानने वालों एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा, एक जमाना आएगा कि यही ताइफ की सरजमी होगी जहां पे मेरे जिस्म पे पत्थर मारे गए हैं। एक दिन आएगा इसी जमीन पर नाम सिर्फ खुदा का लिया जाएगा और मुस्तफा रहमत का लिया जाएगा। आज जमाना देख रहा है, ताइफ में जाकर के देखो, मक्के में जाकर के देखो, मदीने में जाकर के देखो, मक्के की सरजमी है, साहब काबा है, मुस्तफा जाने रहमत काबे के सामने सजदारेज है, कुफारे मक्का हंसी उड़ा रहे हैं, आका के जिस्म पे उछलियां डाल दी जाती है। अल्लाह अल्लाह कोई शख्स दौड़े दौड़े जाता है, नबी की प्यारी लाडली शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा के करीब जाता है, कहता है सैयदा आपके बाबा सजदे में है, उनके जिस्म पे कुफारे मक्का ने उछलियां डाल दी है, गंदगी डाल दी है। आओ जरा मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरी बात का बुरा न मानना, क्या आपने भी कभी दीन के लिए पत्थर खाए हैं? क्या आपने भी कभी इस्लाम की तबलीग के लिए पत्थर खाए हैं? क्या आपने भी कभी दीन की तबलीग के लिए गालियां सुनी है? मगर आओ जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे ताइफ के मैदान में पत्थर बरसाए गए, उसी नबी ने 23 साल की थोड़ी सी मुद्दत में अपने किरदार और अखलाक से सिर्फ अरब नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया।
इस्लाम के परचम को लहरा दिया। सैयदा खातून जन्नत है। आज लोग कहते हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल काम है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कोई कुरान पढ़ने से रोकता है? अल्लाह, बोलिए जरा जोर से। कोई कुरान पढ़ने से रोकता है? आपको कोई नमाज पढ़ने से रोकता है? आपको कोई नात शरीफ पढ़ने से रोकता है? आपको कोई नेकियां करने से रोकता है? पूछिए इन माओ बहनों से, तुम्हें कोई आज नकाब पहनने से रोकता है? तुझे कोई सर पे दुपट्टा रखने से रोकता है? आज तुम हिजाब में रहो तो कोई पाबंदी की बात करता है, लेकिन मुसलमानों ने खुद नमाजें छोड़ दी। मुसलमानों ने खुद कुरान की तिलावत को खैर बात कह दिया। मुस्लिम बेटियों ने खुद निकाब को खैर बात कह दिया। हमने खुद हिजाब को खैर बात कह दिया। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। सैयदा फातिमा को जब खबर मिली मेरे बाबा के जिस्म पे उजरिया डाल दी गई है, सैयदा फातिमा दौड़े दौड़े हरम में तशरीफ लाती है। देखती है बाबा सजदे में है, जिस्म पर उजरिया पड़ी है। सैयदा फातिमा अपने मुबारक हाथों से उन उजरियों को हटाती है। आंखों में आंसुओं के कतरात है। सोचो उस बेटी के दिल पे क्या गुजरी होगी जब उसकी निगाहों के सामने रहमत लिल आलमीन सजदे में हो। अरे यार साउंड बढ़ाओ ना, क्या तुम मजाक करके चला रहे हो? हो गया है बेवकूफ कहीं के। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदा खातून जन्नत है। आंखों में आंसुओं के कतरात है। कभी काबे पे नजर है और कभी आका के सजदे पे नजर है। मैं गया था इस अभी उम्रा करने के लिए अपनी माँ के साथ, तो मुझे ये वाकया बार बार याद आता था। आह काबा, आज तेरे पास कितनी बहारें हैं। आज यहाँ पे कोई काफिर नहीं है, आज यहाँ पे कोई मुशरिक नहीं है, आज यहाँ पर कोई अल्लाह रसूल के खिलाफ साजिश करने वाला कोई काबे में मौजूद नहीं है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, आज हम जहाँ चाहे हरम में नमाज पढ़े, जहाँ चाहे कुरान की तिलावत करे, जहाँ चाहे पेशानी को झुका दे, मगर यही हरम है जहाँ पे आका सजदे में है और कुफारे मक्का ने जिस्म पे जुरिया डाल दी है। सैयदा खातून जन्नत आती है, अपने हाथों से बाबा के जिस्म से उजरिया उतारती है। आका सजदे से सर उठाते हैं, बेटी गले से लिपट जाती है, अर्ज करती है बाबा जान इतना तो बताइए क्या हम हक पर नहीं है? हाँ बेटी हम हक पर है। कहा बाबा जान कब तक कुफारे मक्का जुल्म करते रहेंगे? आका ने मुस्कुरा कर कहा बेटी फातिमा फिक्र न करो, जिस काबे में तेरे बाबा के जिस्म पे उजरिया डाली गई है, एक दिन आएगा कि इस काबे में कोई काफिर मौजूद नहीं होगा। अगर मौजूद होगा तो सिर्फ तेरे बाबा का नाम लेने वाले मौजूद होंगे, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मौजूद होंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा साहब मुसीबत पहले है, आसानी बाद में है, परेशानी पहले है, हल बाद में है। आप समझते हैं हम कोई परेशानी न उठाए, हमारी जिंदगी में आसानी आ जाए। सुल्तान रजा आज आपसे कहना चाहेगा ए मेरी कौम के शहजादों, ईमानदारी से बताओ आज आप कहते हो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जैसे चाहे जिंदगी गुजारे। हमारा कान है हम चाहे इसमें बाली पहने, हमारे पास नाक है हम इसमें नथिया पहने, हमारे पास बाल है बढ़ाकर इसमें हेयर बाल लगा ले। सुल्तान रजा कहना चाहेगा इस्लाम कहता है मर्द के लिए औरत की सूरत बनाना हराम है और औरत के लिए मर्द की सूरत बनाना हराम है। मर्द के लिए जरूरी है कि वो मर्द बनकर रहे और औरत के लिए जरूरी है औरत बनकर के रहे। मर्द चूड़ी पहनने लगे और औरत रिवाल्वर और पिस्टल लेकर घूमने लगे तो फिर साहब ये काम फितरत के खिलाफ है, ये काम फितरत के खिलाफ है। मर्द हो तो मर्द बनकर रहो। कान की बालियां क्यों पहनते हो, गले में लॉकेट क्यों पहनते हो, हाथ में चूड़ियां क्यों पहनते हो? ये तुझे बाजू मिले हैं तो औरतों की है।